My dear student, now in this episode है 9th क्लास का। मैं उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने का प्रयास करने जा रहा हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन मीन्स धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इन द सोसाइटी। समाज में औरत की जो पहचान है वो कैसे बनती है। औरत की पहचान समाज में कैसे बनती है। इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। इन दिस लेसन, इन दिस one act play that is written by Arjun Devcharan, there are mainly three characters. The first is parents and the second is Padma. We know this lesson has been presented by Arjun Devcharan as the form of a one act play. This is a family discussion. In a family, there is a hot debate, there is a discussion between parents and the daughter. During this period, इसी अवधि में पद्मा, who is a young girl, she wants to know some questions from her parents because she is very sorry to see the attitude of a male towards the woman. औरतों की तरफ जो नजरिया है इस समाज के पुरुष वर्ग का, इसको देखकर वो बहुत दुखित है। एंड शी वांट्स टू नो सम क्वेश्चंस। दोज क्वेश्चंस आर द कॉज ऑफ ए शॉक फॉर पद्मा। Padma is not happy to see the condition of women in our society. So she asks some questions to her parents, and her parents give her answer, but she is not satisfied. वो संतुष्ट नहीं है। Because Padma's mother and father are following traditional custom, system, tradition, and she is modern girl. She wants to break some old systems that are running in our society. The first question is, what forms the identity of a woman in the society? समाज में औरतों की पहचान कैसे बनती है? As Padma asked, Padma had asked, Padma पूछी थी, what is the identity and what is the rights of women in our society? एंड देयर इज ऑल्सो ए क्वेश्चन कि व्हाट फॉर्म्स क्या बनाता है
कैसे बनता है द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। तो इन दिस लेसन there are two types of ideas for this answer. The first idea is of the parents, माता पिता का एक विचार है, and the second is the idea of पद्मा। तो इस प्रश्न के जवाब में हम दो प्रकार की बातों को कह सकते हैं। पेरेंट्स से माता पिता कहते हैं कि द मैरिज हेल्प्स, शादी विवाह मदद करता है टू गेट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। शादी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके अनुसार कोई भी लड़की, कोई भी नारी अपना पहचान पा सकती है। बट पद्मा इज नॉट सेटिस्फाइड टू हियर दिस आंसर। सी सेज, वो कहती है तो देयर आर टू टाइप ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। फादर मदर से दैट द मैरिज हेल्प्स, द मैरिज लेंड्स टू गेट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इन आवर सोसाइटी। When a girl is married, जब एक लड़की की शादी होती है, after then she gets her identity. But it is the old tradition and it is happening in our society. It is also true. ये भी बात सत्य है कि after getting marriage, a girl gets her identity and she is called by the name of her husband. अपने पति के नाम के से ही पुकारी जाती है और उसकी पहचान बनती है। बट Padma's thinking is new. As the writer of this one-act play wants to change the thinking attitude of the society, and he became success to change this attitude of society towards women. Padma says, Padma कहती है कि a woman, a girl can get her identity according to her merit. पद्मा कहती है कि कोई भी नारी, कोई भी लड़की अपनी पहचान स्वयं बना सकती है। For identity to a girl, to a woman, for a woman, एक औरत के लिए पहचान बनाने के लिए there is not need of marriage. A woman can get her identity according to her merit. If she has merit, she can make her identity. There are so many examples. IPS Kiran Bedi is not married, but the world know her. The great singer Lata Mangeshkar, who does not know, कौन नहीं जानता है in this world मदर तेरेसा। मदर तेरेसा को कौन नहीं जानता है? And she was not married, but she got her name and fame. She made her identity in this world. In this way, इस तरह पद्मा इज राइट, पद्मा तो ठीक है।
तो इन आवर सोसाइटी, अपने समाज में दो तरह के आइडियाज हैं। एक तो ओल्ड, जो माता पिता कह रहे हैं कि ए वुमन कैन गेट हर आइडेंटिटी आफ्टर हर मैरिज, एंड पद्मा सेज, पद्मा कहती है कि ये वुमन कैन गेट हर नेम एंड फेम, हर आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू हर मेरिट। तो एट लास्ट, इन ब्रीफ, संक्षेप में हम कह सकते हैं फॉर दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, इस प्रश्न के आंसर में, कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कस्टम, हमारी पारंपरिक जो रीति रिवाज है, अकॉर्डिंग टू दैट, उसके तरह, उसके अनुसार, मैरिज हेल्प्स टू गेट आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, एंड पद्मा सेज ए वुमन कैन गेट हर आइडेंटिटी विदाउट मैरिज। So we can write two types of answer of these questions. What forms क्या बनाता है? The identity of a woman, एक औरत की पहचान क्या बनाता है in our society, हमारे समाज में? तो the marriage forms, शादी बनाता है the identity of woman in the society. It is the thinking of Padma's parents. And Padma says, in our society, हमारे समाज में, merits of a woman can form the identity of a woman. एक नारी की पहचान स्वयं नारी बना सकती है विदाउट गेटिंग मैरिज, बिना विवाह और शादी का। तो ठीक है, ओके। अगर इसमें कोई तकलीफ है तुम लोगों को समझने में, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज मस्ट कमेंट, जरूर कुछ कमेंट कीजिए, लिखिए। थैंक यू। लेट अस टर्न टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाउ इज मैरिज रिलेटेड? शादी कैसे संबंधित है टू द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन? एक नारी की पहचान बनाने में, एक नारी के पहचान के लिए शादी कैसे संबंधित है? तो इट इज ट्रू, यह सत्य बात है। इन आवर सोसाइटी, ए गर्ल इज मैरिड, एक लड़की की शादी होती है टू ए बॉय, एक लड़के से। आफ्टर दैट, उसके बाद, शी गोज टू हर हस्बैंड होम, अपने पति के घर जाती है। तो द मैरिज हेल्प्स, द मैरिज इज रिलेटेड, मैरिज संबंध रखता है टू गिव है द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, एक नारी का। व्हेन ए वुमन, व्हेन ए गर्ल इज मैरिड, जब उसकी शादी होती है। आफ्टर दैट, उसके बाद, शी गेट्स हर नेम। तो मैरिज इज रिलेटेड टू गिव द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। थैंक यू। यस, तो in our textbooks there are many types of questions, A, B and C. In the B sections, the first question is, what was the question? वो प्रश्न कौन था?
दैट पद्मा वांटेड, जिसको पद्मा चाहती थी, टू नो, जानना, फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से वो कौन ऐसा प्रश्न था जिसको पद्मा जानना चाहती थी। पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स दैट what is the identity and what is the rights, पहचान क्या है और अधिकार क्या है ऑफ ए वोमैन, एक नारी का, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ पद्मा, यही प्रश्न था पद्मा का, which she wanted to know from her parents, वो अपने माता पिता से जानना चाहती थी कि एक नारी की पहचान क्या है, एक नारी का अधिकार क्या है अपने समाज में। द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ बी सेक्शन, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव, पद्मा के कितने भाई बहन थे। पद्मा वाज ओनली वन डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। शी हैड नॉट एनी ब्रदर एंड सिस्टर, शी वाज एलोन। द थर्ड क्वेश्चन इज, तीसरा प्रश्न है, व्हाई वाज पद्मा अनहैप्पी, पद्मा नाखुश क्यों थी, विथ हर फादर, अपने पिताजी से, अपने पिता से पद्मा नाखुश क्यों थी। एज पद्माज फादर डिड नॉट केयर about the study, activity and other work about Padma, पद्मा के क्रियाकलाप के बारे में उसके पिताजी ध्यान नहीं देते थे। He was very busy from morning to evening to earn money, वे सिर्फ पैसा कमाने में ही सुबह से शाम तक व्यस्त थे। He had no time to ask, to talk to Padma at home any time. Padma's father did not give time to her daughter to talk what is the condition of study, how are you preparing, what is problem with you, ऐसे किसी प्रकार का प्रश्न, किसी प्रकार की उसकी समस्याओं के बारे में उसके पिताजी नहीं पूछते थे। पद्माज फादर केम फ्रॉम ऑफिस इन इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग लंच ही वेंट टू हिज ऑफिस, ऑफिस चले जाते थे। But Padma's father did not ask any type of questions and did not talk, did not care about Padma. Padma is now young. To see this behavior of her father, she was very unhappy, वो नाखुश थी। And such a type of behavior a father should not do with her offsprings, अपने बाल बच्चों के साथ ऐसे किसी भी पिता को नहीं करना चाहिए। Because offsprings means
Children are also, our child, our son and daughter are also very important for any father, any parents. A parent should know, एक माता पिता को जानना चाहिए about their son and daughter. A daughter, a son, a student, what is doing, what is his, what is her condition, and what are their problems, उनकी समस्याएं क्या हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या चाहिए, इन सारी बातों पर एक माता पिता को टॉक करना चाहिए. बट पद्माज फादर डिड नॉट डू दिस वर्क. इस काम को वो नहीं करते थे. दिस वॉज नॉट वर्क. वी कांट से ए वर्क फॉर हिम. हम उसको, इस चीज को उनके लिए काम नहीं कर सकते हैं. इट इज ए ड्यूटी ऑफ ए पेरेंट्स. ये तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि ए पेरेंट शुड नो अबाउट हर चिल्ड्रेन. सो पद्मा वॉज वेरी अनहैप्पी टू हर फादर. नाउ लेट अस टर्न the fourth question of this lesson. For whom is the life hell? Hell, hell means नरक. किसका जीवन नरकीय हो जाता है, किसका जीवन नरक हो जाता है? अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर. पद्मा के मां के अनुसार किसका जीवन नरक जैसा हो जाता है? इट मीन्स, इसका अर्थ है कि किसका जीवन नारकीय हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है, किसके अनुसार? द सी वाज पद्माज मदर. इट वाज द आइडिया ऑफ पद्माज मदर. ये पद्मा के मां की विचार था. बिकॉज शी वॉज वेरी एंड वेरी ट्रेडिशनल वुमेन. वो एक बहुत ही पुरातन, सनातन, पारंपरिक औरत है. शी थिंक्स, वो सोचती है कि हुज हस्बैंड इज डेड. If a woman's husband died, अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो दिस वर्ल्ड बिकम्स, ए दुनिया हो जाती है हेल, नरक, फॉर हर, उसके लिए. तो दिस वाज द थिंकिंग ऑफ पद्माज मदर. ये पद्मा के मां का विचार था. बट पद्मा वाज नॉट सेटिस्फाइड. वो संतुष्ट नहीं थी फॉर दिस रिप्लाई, फॉर दिस आंसर. इस आंसर से पद्मा संतुष्ट नहीं थी. लेकिन यह विचार किनका था? यह विचार पद्मा के मां का था कि अगर किसी औरत का पति मर जाए तो उसका जीवन जो है वह है नारकीय हो जाता है. नाउ लेट अस टर्न towards the fifth question. पांचवें प्रश्न को देखते हैं. What, according to Padma, is the identity of the human race? पद्मा के अनुसार मानव जाति किसकी पहचान है? Padma was very unhappy in this lesson. We know, हम लोग तो जानते हैं कि इस पाठ में पद्मा बहुत नाखुश है. टू सी द ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन. नारियों की तरफ है
पुरुष वर्ग का जो सोच है, जो दृष्टिकोण है, इसको देखकर वो बहुत ही नाराज है। सी इज एग्रीव्ड, बहुत दुखित है। सी इज एजिटेटेड। सो सी वांट्स टू नो, सो सी wants to break the old system, custom, tradition of Indian society। इसलिए वो भारतीय समाज की जो पारंपरिक पुरातन जो व्यवस्था है, जो सोच है, उसको तोड़ना चाहती है। She wants equality। तो अकॉर्डिंग टू पद्मा के अनुसार ए वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस। जो नारी है वह एक मानव जाति की पहचान है। देयर आर टू क्लासेज इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में दो ही वर्ग है, एक नर और एक नारी। बट मेल क्लासेज, जो पुरुष वर्ग है, दे डू नॉट थिंक इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। नर और नारी के बीच तो ये बराबरी समझते ही नहीं है। ये तो हालत है इस समाज की। जबकि वुमेन आर नॉट वीक इन एनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। से मानव जीवन के किसी भी पहलू में, किसी क्षेत्र में ये लड़कियां, ये नारियां कहीं कमजोर नहीं है। बट दिस सोसाइटी इज डोमिनेटेड। ये समाज तो संचालित होता है इन द नेम ऑफ है मेल क्लास। पुरुष वर्ग के नाम के साथ ही इस समाज का संचालन होता है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, आई हैड आस्क्ड ए क्वेश्चन टू ए बॉय इन द क्लास। मैं अपने वर्ग में एक बच्चे से पूछा, यू आर द सन ऑफ हुम। तुम किसके बच्चे हो? द बॉय रिप्लाइड, वो बालक जवाब दिया। द स्टूडेंट रिप्लाइड, आंसर्ड, वो जवाब दिया कि आई एम द सन ऑफ माई फादर। इट मीन्स ही नेम्ड हिज फादर्स नेम। वो अपने पिताजी का नाम रखा कि मैं उनका पुत्र हूं। तो मैंने पूछा, व्हाई डिड नॉट यू नेम योर मदर? तू अपनी मां का नाम क्यों नहीं रखा? आप कहते हो कोई भी पूछता है तो अपने पिताजी का नाम रखते हो कि मैं उनका पुत्र हूं, लेकिन मां का नाम कोई नहीं रखता। व्हाई? जबकि देयर इज ए ग्रेट कोऑपरेशन, देयर इज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ए मदर फॉर ए चाइल्ड। एक बच्चे के लिए मां का बहुत बड़ा योगदान है। विदाउट ए मदर ए बॉय इज डज नॉट मीन्स। मां के बिना एक पुत्र का, एक पुत्री का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। तो फिर सभी बच्चे अपने पिताजी का नाम क्यों लेते हैं? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पद्मा। यही पद्मा का प्रश्न है। पद्मा वांटेड टू नो, पद्मा जानना चाहती थी, व्हाई दिस सोसाइटी मेड such type of rule to dominate this society in the favor of male। पुरुष वर्ग के ही पक्ष में इस सोसाइटी को, समाज को संचालित करने का जो नियम बनाया गया है, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। इट इज द थिंकिंग ऑफ पद्मा। तो थ्रू पद्मा के माध्यम से द राइटर ऑफ दिस वन एक्ट प्ले, इस एकांकी नाटक का जो राइटर है अर्जुन देवचरण, ही रेजेस दिस क्वेश्चंस,
दिस इज ए बर्निंग क्वेश्चन, ये ज्वलंत प्रश्न है। देयर इज नो डिफरेंसेज बिटवीन द मदर एंड द फादर, माता पिता में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो क्यों एक बेटा एक बेटी अपने पिताजी का ही नाम लेता है, मां का नाम नहीं लेता है? वी शुड नेम आवर मदर एंड वी कैन से इन आवर सोसाइटी, I am the son of my mother and we should name our mother. अपने माँ का नाम रखना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पद्मा के अनुसार नारी की जो पहचान है वो भी दैट इज ऑल्सो द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। एक नारी की जो पहचान है वो भी मानव जाति का ही है। थैंक यू। लेट अस टर्न सेक्शन सी। देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। द क्वेश्चन इज स्केच, वर्णन करो द कैरेक्टर ऑफ पद्मा, पद्मा का चरित्र का चित्रण करो। तो वी नो, हम लोग जानते हैं, पद्मा इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस वन एक्ट प्ले। इस एकांकी नाटक का जो मुख्य पात्र है, सी इज पद्मा, वो पद्मा है। पद्मा वांट्स टू नो, पद्मा जानना चाहती है। एंड Padma wants to break old system, custom, tradition of our society. She wants to bring a revolution in our society. She wants to set up, वो स्थापित करना चाहती है, a new civilization, a new culture in our society. We know, हम लोग जानते हैं, Padma is an educated girl and modern girl. पद्मा एक पढ़ी लिखी एक युवती लड़की है। एंड शी न्यू, वो जान गई है अबाउट आवर सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम। एंड सीइंग दिस, इसको देखकर शी इज वेरी अनहैप्पी, वो बहुत नाखुश है। द एटीट्यूड ऑफ मेल क्लास, पुरुष वर्ग का जो नजरिया है, जो सोच है टुवर्ड्स वुमेन, इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। इट इज द थॉट ऑफ पद्मा, पद्मा का यह सोच है कि पुरुष वर्ग का जो नजरिया है नारियों की तरफ, लड़कों का जो नजरिया है लड़कियों की तरफ, दिस इज नॉट गुड। देयर इज नो इक्वालिटी। द पेरेंट्स डू नॉट, माता पिता, द फादर एंड द मदर do not behave equal between a girl and a boy. एक लड़का एक लड़की के बीच में माता पिता समान रूप से बिहेव नहीं करते हैं। बट मोस्टली इट इज नॉट फाउंड इन आवर सोसाइटी। देयर आर मेनी फैमिलीज, देयर मेनी पेरेंट्स हु गिव, बहुत ऐसे माता पिता है अपने समाज में, बहुत ऐसा फैमिली है अपने परिवार, अपने समाज में, जो लड़कियों को बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं। दे हेल्प मच गर्ल रादर देन टू द बॉयज। लड़कों से ज्यादा कुछ ऐसे परिवार हैं जहां ज्यादा मान सम्मान लड़कियों को ही मिलता है। बट मोस्टली, अधिकांशतः, इट इज सीन, यह देखा जाता है इन आवर सोसाइटी दैट पीपल
think about a girl, pupils thinking is inferior about girl to a boy. एक बालक से एक लड़की के बारे में जो सोच है वो जरा घटिया है. टू सी दिस, इसी को देखकर पद्मा इज वेरी अनहैप्पी. सी इज एग्रीव्ड, वो दुखित है. एंड सी वांट्स, वो चाहती है, टू ब्रेक दिस कस्टम, सिस्टम, ट्रेडिशन, उस सिस्टम को, इस परंपरा को तोड़ना चाहती है. पद्मा इज रिवोल्यूशनरी गर्ल, पद्मा एक क्रांतिकारी लड़की है. सी वांट्स टू ब्रिंग ए रिवोल्यूशन in our society, in Indian society. She says, वो कहती भी है, our constitution has given equality between a girl and a boy. एक लड़का एक लड़की के बीच में तो अपना संविधान के माध्यम से कोई अंतर नहीं है. संविधान तो दोनों को बराबरी का हक दिया है. So there should be equality between a woman and a man. एक नारी और एक पुरुष के बीच समानता होनी चाहिए. People think, लोग सोचते हैं, this class means women class, girls are inferior, junior to male class. पुरुष वर्ग से ये जो नारी वर्ग है ये जूनियर होते हैं, कमजोर होते हैं. बट पद्मा सेज, लेकिन पद्मा कहती है, इट इज अनजस्टिस, यह अन्याय है. पद्मा रेज्ड ए क्वेश्चन, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन. पद्मा एक बहुत सुंदर प्रश्न उठाई है. व्हेन ए मैन इज नॉट मैरिड, एक पुरुष की शादी नहीं होती है, देन दिस सोसाइटी वेनेरेट हिम, यही क्लास, यही समाज उसकी पूजा करता है, आराधना करता है, सम्मान देता है. गिव ऑनर एंड सेज, कहता है, ए संत, ए सेंट, एक संत कहता है, सज्जन कहता है. When a woman is not get married, जब एक लड़की की शादी नहीं होती है, तो this society, the same society says, यही सोसाइटी, यही समाज कहता है कि the woman, the girl is wanton and immoral. ये नारी जो है चरित्रहीन है और यह अनैतिक है. At this, इस पर to know about this system, this custom, this statement of male classes, पुरुष वर्ग के इन वक्तव्य को, बातों को देखकर पद्मा इज वेरी शॉक्ड. सी इज वेरी अनहैप्पी. सी वांट्स टू ब्रेक दिस ऑल बैड custom and tradition of our society. She wants to bring equality between men and women, girl and boy. लड़का लड़की के बीच वो समानता लाना चाहती है. तो पद्मा प्लेड ए रोल, गुड रोल इन दिस वन एक्ट प्ले. शी प्लेड एज ए important role. She wants to bring a new vision, wants to set up a culture, new situation in our society, and she says, वो कहती भी है कि woman, a girl is not inferior. A woman, a girl is not junior to men classes. Boys, बच्चों से, पुरुष वर्ग से किसी भी क्षेत्र में लड़कियां कम नहीं है. ए वुमन, ए गर्ल कैन मेक हर आइडेंटिटी विदाउट हेल्पिंग ऑफ है मैन. यहाँ कोई जरूरत नहीं है किसी पुरुष वर्ग को, एक नारी को, एक लड़की को उसको मान सम्मान देने में, उसकी पहचान बनाने में. ये वुमन कैन गेट हर आइडेंटिटी
a woman, a girl can make her identity according to her merit, and there are so many examples. भारत हैं तो Padma is a revolutionary character in this lesson. She is very good and her character is very good. Her ideas are very good. I like such kind of a student. I like such of girl. Thank you. Okay. Bye bye. But I want to say you, my dear students, must you comment. कुछ बातें अभी कमेंट करो. कमेंट करोगे, आफ्टर दैट आई शैल ट्राई टू टीच वेल. थैंक यू. थैंक्स.